but why do you want the perpendicular distance of the entire rod with the axis? क्यों? सेंटर ऑफ मास से क्या लेना देना? मालूम है कि नहीं है? ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, यूनिफॉर्म तो है ही, बट ऑलवेज। हम्म ओके चलो, एलिमेंट, हाउ आर यू चूजिंग द एलिमेंट? रॉड पे ही चूज करोगे ना, सो you'll have to choose the element on the rod itself. ठीक है, so x distance पे you choose an element dx. Now this dx, how will you treat it? As what? As a point mass. ठीक है, so you find dm. dm कितना होगा? dm would be m by l into dx. Then how do you calculate the moment of inertia? What will be the moment of inertia of this point? Perpendicular distance from the axis. What is the perpendicular distance from the axis? Huh, this is the perpendicular distance from the axis. So this distance is x, this is theta. So what is this distance? x sin theta. ठीक है, so the moment of inertia of that small mass would be dm, यानी कि m by l into dx multiplied by the distance का square. What is the distance का square? x square sin square theta. sin square theta constant है, so that comes out. तो ये कितना हो जाएगा? m by l sin square theta, and you'll have to integrate x square dx from 0 to l. l ना, x कैसे जा रहा है तेरा? your x is going along the rod, तो वो क्यों x cos theta होगा? ठीक है, so the limit of integration would be from 0 to l. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? l cube by 3. तो ये कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस विल कम आउट टू बी m l square by 3 into sin square theta. Is that clear? एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा कि नहीं होगा ना? देखो तुम्हारा एक्सिस कैसा है, और एक्सिस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू लेंथ ना? नहीं ना, बता। इनटू द प्लेन जा रहा होगा, तो इफ द एक्सिस इज गोइंग इनटू द प्लेन, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाओगे? ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट, सो दिस हैज टू बी इन दिस सेम प्लेन, मतलब इसके पैरेलल होना चाहिए. ओके, नाउ कैन यू से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वुड बी ml स्क्वायर बाय 12? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना. कब बोल सकते हैं? व्हेन द रॉड, the axis has to be perpendicular to the rod, तब ml square by 12 बोल सकते हैं. Is that clear? इस केस में we'll have to integrate this. तू कैसे किया? I don't know. मैंने बस वो रॉड का जो प्रोजेक्शन है वो मैंने x एक्सिस पे ले लिया, तो रॉड की लेंथ l से l sin थीटा में चेंज हो गई. ठीक है, फिर सर उसके बाद वही सर ये x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट, और फिर
बट प्रोजेक्शन लेना तेरा आंसर सही आ गया, करेक्ट, योर आंसर केम आउट टू बी राइट. सो व्हाट यू आर सेइंग कि m का इधर प्रोजेक्शन ले लो, इधर होगा प्रोजेक्शन l cos थीटा और इधर होगा प्रोजेक्शन l sin थीटा. ठीक है. सो दिस लेंथ ऑफ द रॉड इज लाइंग ऑन द एक्सिस, मतलब इट विल हैव नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस रॉड विल हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट दिस इज व्हाट, अ लाइन, मतलब दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड, और वो कितना होता है ml स्क्वायर बाई 3. व्हाट इज दिस लेंथ, l sin थीटा, तो ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 3. ऑल राइट, that gave you the answer, but the problem is length a scalar a vector quantity. ठीक है, length is not a vector quantity, तो ये काम थोड़ी कर सकते हैं. We cannot do that. We can do with that with position vector, we can do that with velocity vector, we have done that, but we cannot do this for a length. Length is a scalar quantity, right? तो उसके projection का there is no meaning, I mean as in this case. ठीक है, is that clear? Okay, कितना टाइम हो रहा है, 4:23, 7 मिनट में. 3 घंटे में 7 मिनट dx है कि नहीं है, that's debatable. Anyway, let's try solve a few questions. ब्रेक क्या है, 10-15 मिनट तो छोड़ ही देंगे, छोड़ देंगे. 2-3 क्वेश्चन then go home. लिखो क्वेश्चन. The surface density, you understand the meaning of surface density? ठीक है. The surface density of a circular disc, the surface density of a circular disc is given by rho is equal to a plus br. Rho is equal to a plus br, where r is the distance from the center. Where r is the distance from the center. Find the moment of inertia of the disk. Find the moment of inertia of the disk passing through the center and perpendicular to the plane. Passing through the center and perpendicular to the plane. Can we keep the class from 1 o'clock? तो we'll इससे बच जाएंगे हम लोग. Alright, we, हाँ 1 o'clock से, हाँ sheets वगैरह तो 1 o'clock से. 12 कर सकते हैं क्या, 12? I'm asking everyone. हाँ, तो सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करके आना.
ब्रेक दे देंगे। किसका? कब तक है तेरा स्कूल? 2 बजे तक? तो 1 बजे कैसे आएगा? तो बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो तेरे को क्यों 6 दिन क्यों स्कूल जाना? 5 दिन स्कूल जाना। तो तू छुट्टी मारा होगा बीच में, और क्या। तू क्या बोल रहा है? तू क्या देख के चूज गया है? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो ठीक है, फिर तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, 2 बजे से ही रख सकते हैं। कोई बात नहीं। रॉड डिस्क है? हाँ, तो करके दिखा ना, करके दिखा। हाँ, गलत। ठीक है, चलेगा। ठीक है, करेक्ट। टू एक्स डी एक्स क्या होता है मेरे दोस्त? हैं? व्हाट इज 2x dx? डिस्टेंस? व्हाट डिस्टेंस? तो रेडियस ऑफ द रिंग। तो उससे व्हाट इज दिस? सोच। हम्म मास पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। कोई बात नहीं। तो डीएम क्यों कैलकुलेट किया? अच्छा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया अच्छा वो तो दिखाया नहीं। हाँ, देन दैट्स राइट। ठीक है, ठीक, करेक्ट। तो तुम लोग का समर वेकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 10th मई। 10th मई से 1 महीना, बस 1 महीना छुट्टी मिलता है। 1 week 7 days। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, सुबह दोपहर शाम कभी भी बुला लेंगे। क्यों, रात में तेरा क्या इधर एंगेजमेंट है? चलो, इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग। ठीक है, सो द डेंसिटी इज वेरीज एज द रेडियस। द डेंसिटी इज वेरिंग विथ द रेडियस। ठीक है, सो ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज x डिस्टेंस पे we'll take a ring
विच हैज अ थिकनेस ऑफ dx. तो dm कैसे निकालेंगे? dm विल फाइंड आउट बाय mass per unit area into the area. Mass per unit area is already given. What is that? a plus br, मतलब bx हो जाएगा. This is the density. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? into the area. And we very well know किसका एरिया क्या होगा? क्या होगा एरिया? 2 pi x dx. ठीक है. Now what is it? A ring. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू द रेडियस स्क्वायर. व्हाट इज द मास? द मास इज 2 pi x a plus bx into dx. दिस इज द मास. इसका रेडियस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज द रेडियस? x. तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है. नाउ इंटीग्रेट दिस एंड फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. Clear? Okay, so this I am giving you as a homework. मीटर रॉड कितना लंबा होता है? Okay, so there has marks 1 centimeter, 2 centimeter. So 1 centimeter पे you have put 1 gram, 2 centimeter पे you have put 2 gram. Similarly, चलते चलते at 100 centimeter you have put 100 gram. ठीक है. Find the moment of inertia. Mass rod मतलब this rod does not have any mass. ठीक है. This rod does not have any mass. It is just for reference. Find the moment of inertia about the perpendicular bisector of the rod. हाँ. Homework है. Find the moment of inertia of the perpendicular bisector of the rod. ठीक है. Alright, so I think that's it for today. Next week we'll start with dynamics. ये तो पूरा इसमें ही चला गया क्लास. नहीं, I think let's see 3 more classes I guess. अगर if you guys are able to pick up rotation very well, तो और difficult problems पे एक और क्लास ले लेंगे. तो 3 or 4 classes more. ठीक है. आएगा 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 आएगा.